محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس کسی میں بھی حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع میں شاندار پیمانے پر تلنگانہ جنگجو چاکری علامہ کی برسی تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ اسپیکر پوچھرام و ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے پیش کی خراج عقیدت۔ بالکنڈہ کے مختلف ترقیاتی کاموں میں حصہ لینے والے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے ضلع نظام آباد کے زیڈ پی دفتر پنچایت راج چیف انجینئر دفتر کا کیا افتتاح۔ ان کے ہمراہ زیڈ پی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ موجود۔ بودھا نے ملے شکیل عامر کے زیر اہتمام کیمپ دفتر پر مفت ڈرائیونگ لائسنس و میگا میلے کا کیا گیا افتتاح۔ ضلع کامریڈی اکبر نگر میں ترقیاتی فلاحی اسکیمات کا آئی اے ایس عہدیداروں نے لیا جائزہ۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے مسلم خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم کا آغاز۔ جگتیال میں 400 مشینوں کی تقسیم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ بودھا نے ملے محمد شکیل عامر کے احکامات کے مطابق مفت ڈرائیونگ لائسنس و میگا میلے کا ایم ایل اے کیمپ دفتر پر افتتاح عمل میں لایا گیا۔ بودھا رکن اسمبلی شکیل عامر کے احکامات کے مطابق مفت ڈرائیونگ لائسنس و میگا جاب میلے کا ایم ایل اے کیمپ دفتر پر افتتاح عمل میں لانے کا منتظمین نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج سے 26 تاریخ تک ہر روز کیمپ دفتر پر سلاٹ بکنگ کی جائے گی، جس کے لیے درکار اخراجات رکن اسمبلی شکیل عامر خود اپنے ذاتی خرچ سے ادائیگی عمل میں لائیں گے، اور بودھن حلقے کے عوام و 18 سے 30 سال کے نوجوان اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں بی آر ایس پارٹی صدر رویندر یادو، منڈل صدر نرسنا، سنجیو، فلور لیڈر گنگا رام، بی راجیشور، کونسلر اشفاق، جاوید، بی آر ایس قائدین گنگادھر گوڈ، محمد شیخ زبیر، شیخ قاسم، مقیت و دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے مسلم خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم کا آغاز۔ جگتیال میں 400 مشینوں کی تقسیم۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے مسلم خواتین میں آج سے سلائی مشینوں کی تقسیم کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس پروگرام کا آغاز جگتیال شہر میں وزیر اقلیتی بہبود کوپولا ایشور اور چیئرمین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق نے کیا۔ اس پروگرام کے تحت 400 سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ افتتاحی پروگرام میں رکن اسمبلی جگتیال ڈاکٹر ایم سنجے کمار، پرنسپل سیکریٹری اقلیتی فلاح و بہبود تلنگانہ عمر جلیل، ضلع پریشد چیئرپرسن داوا وسنتا سریش کوریٹلا، رکن اسمبلی ودیا ساگر راؤ، رکن اسمبلی چوپڑہنڈی روی شنکر، ایڈیشنل کلکٹر بی ایس لتا اور دیواکر ٹی ایس، کریم نگر مجلس ٹاؤن صدر سید غلام احمد حسین، صدر مجلس جگتیال یونس ندیم، عبد القادر مجاہد، صدر اقلیتی سیل محمد امین الحسن، سینئر قائد کے علاوہ دیگر نے شرکت۔ اس دوران صدر ملت اسلامیہ جگتیال عبد الباری، جنرل سیکریٹری نعیم الدین منظور، نائب صدر غیاث الدین نے پرنسپل سیکریٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل سے ملاقات کرتے ہوئے جگتیال میں عیدگاہ کے لیے 10 ایکڑ اراضی، مسلم کمیونٹی ہال کی تعمیر اور منی حج ہاؤس کا قیام اور غسل خانہ اور عیدگاہ میں فلورنگ اور دیگر مسلم مسائل پر ایک تحریری یادداشت پیش کی، جس پر پرنسپل سیکریٹری عمر جلیل نے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا، جبکہ صدر تحریک اردو تلنگانہ خان ضیاء، چیئرمین سینٹرل اتحاد ملت اسلامیہ ہند جگتیال محمود علی اور صدر تلنگانہ اردو جرنلسٹ فیڈریشن جگتیال محمد عبد المجاہد عادل نے علیحدہ طور پر تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے تلنگانہ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری جناب عمر جلیل کو پیش کرتے ہوئے
ضلع جگتیال میں اردو کمپیوٹر سینٹر کی بحالی، بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کرنے اور ویمنز ڈگری کالج جگتیال میں گارمنٹ میکنگ کورس کا آغاز کرنے اور اردو صحافیوں کے لیے اردو اکیڈمی سے لیپ ٹاپ کی فراہمی کرنے کی درخواست کی۔ چالانات سے حکومت کی آمدنی بڑھانے پر ٹریفک پولیس کو انعام۔ کارپوریٹ اور صنعتی اداروں میں ایسے ملازمین کو بھاری پیکیج اور مراعات کا اعلان کیا جاتا ہے جن کی کارکردگی شاندار رہی ہو۔ اس اصول کو اب ریاستی حکومت بھی اپنا رہی ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے اس اصول کو حکومت تلنگانہ نے ٹریفک پولیس پر لاگو کیا ہے، جس کا مقصد بھاری چالانات کے ذریعے سرکاری خزانہ بھرنے کے ساتھ مقررہ وقت پر دیے گئے نشانے کو پورا کرنا ہے۔ اس کے عوض حکومت ٹریفک پولیس کے عملے کو 30% اضافی تنخواہیں ادا کر رہی ہے۔ ذرائع کے بموجب ٹریفک پولیس حکومت کا خزانہ بھرنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ٹریفک پولیس کو 30% اضافی تنخواہ دی جا رہی ہے تاکہ عوام سے کروڑوں روپے وصول کر کے حکومت کے خزانے میں جمع کرائے۔ گزشتہ دور میں حکومت حساس شعبے میں ملازمت کرنے والوں کو مقررہ تنخواہ سے اضافی رقم ادا کی جاتی تھی۔ ان حساس اداروں میں کاؤنٹر انٹیلیجنس، اسٹیٹ انٹیلیجنس بیورو شامل ہے، جن کے ملازمین کو اضافی تنخواہ دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حیدرآباد، رچاکنڈا اور سائبر آباد کے علاوہ اضلاع میں ٹریفک کا کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہے۔ جبکہ کوئی تہوار یا کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے تو ٹریفک جام کا مسئلہ سامنے آتا ہے، گھنٹوں عوام کو ٹریفک میں پھنس جانا پڑتا ہے۔ دیگر محکموں کے ملازمین کا ماننا ہے کہ ٹریفک پولیس کو اضافی تنخواہ دینا ناقابل فہم ہے، کیونکہ دیگر محکمہ جات کے ملازمین بھی مقررہ وقت سے زائد کئی گھنٹے فرائض انجام دیتے ہیں، مگر دیگر محکموں کے ملازمین اور ٹریفک پولیس عملے کے درمیان فرق ہے۔ دیگر ملازمین سرکاری خزانے پر بوجھ بنتے ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس حکومت کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، اسی لیے انہیں 30% اضافی تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اگر ریاست بھر کی ٹریفک پولیس مقررہ نشانے کی تکمیل نہ کرے یا معمولی چالانات عائد کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لے تو پھر انہیں اضافی تنخواہ سے محرومی کا خدشہ رہتا ہے، اسی لیے وہ عوام کی جیبوں کو ہلکا کرنے کے لیے بھاری چالانات عائد کرتے ہیں۔ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حکومت نے ایک طریقے سے لالچ دے کر ٹریفک پولیس کو خرید لیا ہے۔ آج ٹریفک پولیس کے عہدیدار کسی بڑے عوامی قائد کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موسم گرما میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو ٹھنڈی لسی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ لسی کی فراہمی کا جواز دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹریفک پولیس کے جوان سخت دھوپ میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ شہر میں بے ہنگام ٹریفک سے عوام پریشان ہے۔ ٹریفک پولیس کے بھاری چالانات اور مہنگا پیٹرول ڈیزل سے عوام کو دوہرا مالی بوجھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ تلنگانہ کی آزادی کی خوشی میں 17 ستمبر کو یوم قومی یکجہتی منانے BRS حکومت کا اعلان۔ تلنگانہ کی BRS حکومت نے 17 ستمبر کو تلنگانہ کی یوم آزادی کے دن یوم قومی یکجہتی منانے کا اعلان کیا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم نسق کلوگنڈلا تارک راما راؤ نے 17 ستمبر کو قومی یکجہتی کا دن قرار دیا۔ انہوں نے ریاست بھر میں پارٹی قائدین اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے 17 تاریخ کو قومی یکجہتی دن شاندار تقریب منائیں۔ KTR نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے لوگ 17 ستمبر کو یوم قومی یکجہتی کے طور پر منائیں گے، کیونکہ اسی دن تلنگانہ انڈین یونین میں ضم ہوا اور وہ اس دن کو ہر جگہ شاندار طریقے سے منانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ خود حیدرآباد شہر میں ہونے والی تقریب میں شرکت کریں گے اور وزراء حکومت کی جانب سے ہر ضلع کے مرکز میں بڑے پیمانے پر منعقد کی جانے والی تقریبات میں شرکت کریں گے اور قومی پرچم لہرائیں گے۔ ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کی تعمیر کے لیے اس سے متعلقہ اراکین کو پروسیڈنگ کاپی کے حوالے۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویمولا پرشانت ریڈی نے بالکنڈہ حلقے کے ویلپور میں واقع کیمپ دفتر پر مورتال کمرپلی منڈلوں کے مختلف دیہات کے لیے منظور ہونے والے پروسیڈنگ کاپی کو مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کے اراکین کو حوالے کیا۔ پہلے مرحلے کے طور پر مورتال منڈل کے ملانا مندر کمپاؤنڈ وال کی تعمیر کے لیے 4.50 لاکھ روپے، کمرپلی منڈل میں ایراگولا یادو سنگم کمپاؤنڈ وال بشیرآباد 4.50 لاکھ روپے، کورما سنگم کمیونٹی ہال بشیرآباد کے لیے 5 لاکھ روپے، دلت مادیگا سنگم بشیرآباد
6 लाख रुपए, दलित माला संगम चोटपल्ली 6 लाख रुपए, कुमारी संगम चोटपल्ली 3 लाख रुपए, कुर्मा संगम चोटपल्ली 6 लाख रुपए, गोला यादव संगम चोटपल्ली 5 लाख रुपए, गौड़ा संगम हासा कुतूर के लिए 5 लाख रुपए, यादव संगम हासा कुतूर के लिए 4.50 लाख रुपए, यादव पेदा संगम हासा कुतूर 6 लाख रुपए, वडेरा जातिया सायनिया संगम हासा कुतूर के लिए 6 लाख रुपए, गुराडी कापुर रेड्डी संगम कोनापुर 7 लाख रुपए, कुर्मा यादव संगम नागापुर 5 लाख रुपए पर मबनी प्रोसीडिंग कॉपी को मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन को हवाले किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूब अमल में लाते हुए इसके फ़वाइद से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है और दीगर बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के लिए भवन की तामीरी के लिए प्रोसीडिंग कॉपी को हवाले किया जा रहा है और CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत तेलंगाना में कई फलाही स्कीमात जैसे रैतु बंधु रैतु बीमा 24 घंटे मुफ्त बरखे की सरबराही अमल में लाते हुए किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाई है, जिससे रियासत तेलंगाना में मुकीम किसान CM KCR के शहदाई हो गए हैं। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR तमाम तबक़ात की एकसा तरक्की के लिए कोशां हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ बेहतर सलूक किया जा रहा है और तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद की खातिर मुख्तलिफ स्कीमात को ना सिर्फ मुतारफ़ किया गया है बल्कि इन स्कीमात के फ़वाइद से ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। और इसी तरह से CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत सतह क़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में CM KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से शुरू किए गए फलाही स्कीमात के बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं और मुकामी अवाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से मुस्तफ़िद होकर तरक्की की जानिब गामज़न हो चुके हैं और आज मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए इससे वाबस्ता अराकीन को प्रोसीडिंग कॉपी हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व दीगर मौजूद थे। साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन का दौरा निजामाबाद रेलवे स्टेशन तरक्याती कामों का लिया जायजा, ओहदेदारों को हिदायत। साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन हैदराबाद डिवीज़न में वाक़ निजामाबाद रेलवे स्टेशन का मुआयना किए। इनके हमरा हैदराबाद डिवीज़न रेलवे मैनेजर लोकेश वैष्णवी ने दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। अरुण कुमार जैन ने निजामाबाद स्टेशन पर क्रियो कंट्रोल ऑफिस का मुआयना किया और मुताल्लिक़ा बुकिंग लॉबी के कामकाज का मुशाहिदा किया। इन्होंने ड्यूटी के लिए बुक किए गए लोकल प्लेटफॉर्म्स, गार्ड्स और अमले के इंतज़ामी निज़ाम का मुआयना किया। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ड्यूटी से क़ब्ल स्टाफ रेस्ट रूम्स की सहूलियात पर तवज्जो दे, वो अमले के लिए मुनासिब आराम को यकीनी बनाया जाए। रंग रोगम और फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने स्टेशन मैनेजर के अहाते में पौधे लगाए। इन्होंने अमृत भारत स्टेशन पर तरक्की के लिए तरगीब दी गई। सहूलियात का जामे जायजा लिया। जनरल मैनेजर ने स्टेशन के अहाते इलाके का भी मुआयना किया। स्टेशन पे हादसा रिलीफ ट्रेन और मेडिकल रिलीफ वैन का मुआयना किया गया। स्टेशन के गुड्स शेड और वैगन डिपो का भी मुआयना किया गया। इसके बाद ओहदेदारों से तरक्याती मंसूबों पर तबादले ख्याल किया गया। जनरल मैनेजर टेकरियाल सिंगरी की हिफाजती इक़दामात का भी मुआयना किया। तेलंगाना के जंगजू अनजहानी चाकली अलामा की बरसी के पेश नज़र बांसवाड़ा शहर के ताड़कुल रोड पर वाक़े मुजस्सिमे पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने पेश की गुलाहे अक़ीदत। तेलंगाना के जंगजू व अनजहानी चाकली अलामा की बरसी के पेश नज़र बांसवाड़ा शहर के ताड़कुल रोड पर वाक़े मुजस्सिमे पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना की जदोजहद में अपनी जान की परवाह न करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बहादुर खातून चाकली अलामा लड़की होने के बावजूद भी लड़कों से ज़्यादा ताकत का मुजाहरा करने का इजहार किया।
इस प्रोग्राम में जिले रैतु बंधु समिति सदर DN रेड्डी, RDO भुजंगराव, म्यूनिसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, सोसाइटी चेयरमैन A कृष्णा रेड्डी, अवामी नुमाइंदे, BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा रजका संगम के अराकीन ने हिस्सा लिया। సమాజం కోసం తెలంగాణ కోసం పోరాడినటువంటి వ్యక్తి, ఒక ఆడబిడ్డ ఉండి కూడా ధైర్య సాహసాలతో మగవారి కంటే ఎక్కువ ధైర్యంతో ఆనాడు ఉన్నటువంటి పాలకులకు వ్యతిరేకంగా ఎదురు తిరిగి తెలంగాణ సాధనలో ఆనాటి నుంచే పాత్ర వహించినటువంటి మహాయోధురాలు చాకలి ఐలమ్మ. అలాంటి చాకలి ఐలమ్మకి ఈరోజు అందరం కూడా వర్ధంతి సందర్భంలో హృదయపూర్వకంగా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ रेंजर मंडल ताल बिलोली देहात में रजका संगम के जेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर चाकली अलामा की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। रेंजर मंडल के ताड़ बिलोली देहात में चाकली अलामा की 38वीं बरसी तकरीब रजका संगम के कायदीन ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में मजलिस बल्दी के मेंबरान के साथ गांव के बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तहरीक में चाकली अलामा का अहम तरीन किरदार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पंचायत के अराकीन नरसैया, मौजी के अवाम, राजेश्वर प्रसाद, रजका संगम के कायदीन साइलू, मोहन, एलैया, प्रभाकर व दीगर ने हिस्सा लिया। ఏదైతే చాకలి ఐలమ్మ యొక్క జయంతిని వర్ధంతిని చాకలి ఐలమ్మ యొక్క వర్ధంతిని మరి మా రజక కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ దగ్గర 100 కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు తాడిబిలోలి గ్రామం నందు మరి ఆమె యొక్క వర్ధంతిని జరుపుకోవడానికి SRSP प्रोजेक्ट की सतह में तेजी से इजाफा होने का प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने किया इजहार। निजामाबाद जिले के SRSP प्रोजेक्ट पोचमपाड़ में गुज़िश्ता 5 दिनों में 25 TMC सैलाबी पानी दाखिल हुआ है। मुकामी बालाई इलाकों में बारिश के बायस सैलाबी पानी बहालत मौजूदा प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। माजी में यह एहसास था कि SRSP प्रोजेक्ट सिर्फ इस सूरत में भरेगा जब महाराष्ट्र के इलाके में बारिश होगी। प्रोजेक्ट ओहदेदारों का कहना है कि बारिश की वजह से ज्यादातर पानी मुकामी बालाई इलाकों से दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट में 5 दिनों से बालाई इलाकों से मुसलसल सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है। 1500 क्यूसेक से शुरू होने वाला सैलाबी पानी ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। ओहदेदारों ने फ्लड गेट्स के जरिए प्रोजेक्ट से इन दिनों 22 TMC पानी का गोदावरी में अखराज अमल में लाया है। जारिया साल 21 जून से अब तक 149 TMC सैलाबी पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ है और 80 TMC फाजल पानी का अखराज अमल में लाया जा चुका है, जिसमें माह जुलाई में फ्लड गेट्स के जरिए 32 TMC और 4 दिनों में 22 TMC जुमला 54 TMC पानी गोदावरी में छोड़ा गया। बालाई इलाकों से सैलाबी पानी का अखराज जारी है। प्रोजेक्ट में सुबह 72,000 क्यूसेक्स पानी दाखिल होने शाम तक की मकदार 52,000 तक पहुंच गई। सुबह 20 फ्लड गेट्स के जरिए 62,000 क्यूसेक पानी का अखराज अमल में लाया गया। शाम 14 गेट्स के जरिए 44,000 क्यूसेक पानी खारिज किया गया। प्रोजेक्ट की काकतिया किनाल से 3,000 क्यूसेक, स्कीप गेट के जरिए 5,000 क्यूसेक, मिशन भगीरथा के लिए 152 क्यूसेक आबी बकरात की शक्ल में 666 क्यूसेक पानी खारिज हो रहा है। प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह लबरेज हो जाने पर प्रोजेक्ट से मुत्तसिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर चार्टर बाइनों से 36.33 मेगावाट बरक़ी पैदा की जा रही हैं, जिनको DE श्रीनिवास ने कहा कि जारिया माली साल अब तक 23.53 मिलियन यूनिट बरक़ी पैदा की गई हैं। प्रोजेक्ट में मुकामी बालाई इलाकों से तेज बहाव दाखिल होने पर सुबह 20 फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं और 62,000 क्यूसेक पानी का अखराज अमल में लाया गया। जिले कामरेडी के RNB गेस्ट हाउस की हुदूद में बहादुर खातून चाकली अलामा की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामरेडी के RNB गेस्ट हाउस के अहाते में वाक़े चाकली अलामा मुजस्सिमे के पास जिले पसमानदा तबक़ात व बहबूद के ज़ेरे निगरानी में बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया।
इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने चाकली अलामा के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस प्रोग्राम में जिले पसमानदा तबक़ात बहबूद व महकमे के ऑफिसर श्रीनिवास, NGO सेक्रेटरी साइलू, BCSC माइनॉरिटी संगम के नुमाइंदे राजैया, मल्लैया, संगैया व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मुबकाल मंडल में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। बालकुंडा हल्के का दौरा करने वाले रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा मंडल के बुसापुर देहात में 20 लाख रुपए की लागत से नए ग्राम पंचायत भवन की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संग बुनियाद रखने के साथ साथ 6 लाख रुपए मालीती रकम से गौसंगी संगम की नई संगम भवन की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बातज़ा इन्होंने मुबकाल मंडल के नेलूर देहात में 1.70 करोड़ रुपए मालीती रकम से जदीद तौर पर तामीर करदा KV 3311 सब स्टेशन का इफ्तिताह में लाया और निज़ाम सागर डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल BSC पर 14 लाख रुपए मालीती रकम से मरम्मत के कामों का इफ्तिताह में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से बालकुंडा इलाके के मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे बालकुंडा मंडल मुबकाल मंडलों की तरक्की के लिए फिलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है ताकि तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम को सहूलियात पहुँचाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में वजीफे की रकम में इजाफा करते हुए माजूरीन को हर माह 4016 रुपये पेंशन की फराहमी अमल में लाई जा रही है और रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए रैयत बंधु रैयत बीमा 24 घंटे मुफ्त बरखे व दीगर स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए मुस्तहिक अवाम को फैज़याब करने का इजहार किया। గత 6 నెలల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల యొక్క ప్రారంభోత్సవాలు శంకుస్థాపనలో భాగంగా ఇవాళ నల్లూరు గ్రామంలో ముక్కాల్ మండలం ఇవాళ కొత్తగా 2 కోట్ల రూపాయలతో సబ్స్టేషన్ని ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది। నల్లూరు గ్రామ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। जिले कामरेड्डी के अकबर नगर में तरक्याती फलाह स्कीमात का ट्रेनी IAS टीम ने लिया जायजा। मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती फलाह स्कीमात के ताल्लुक से ट्रेनी IAS की टीम ने अकबर नगर देहात में सुबह ठीक 9 बजे से दोपहर 5 बजे तक पैदल दौरा करते हुए जायजा लेने के दौरान मौज़मी गाँव का दवाखाना, कुदरती जंगलात, CC रोड, नर्सरी, डबल बेडरूम और मौज़मी मुक़ीम अवाम से मुलाकात करते हुए नाफिज करदा स्कीमात के तरीक़ेकार का जायजा लेने का ट्रेनी IAS की टीम अर्चना ने इजहार किया। अकबर नगर में वाक़े ट्रेनी IAS की टीम ने निज़ामाबाद, DRDO, चंदर, MPDO, बाला गंगाधर, MPO, साइलू, टेक्निकल असिस्टेंट प्रसाद से मुलाकात की। वो रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत की। इस प्रोग्राम में मौजे के सरपंच T गंगामणि प्रसाद, पंचायत सेक्रेटरी गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। मिला था इसको और बजट एलोकेशन कितना हुआ था? 2 लाख कब करेंगे? एक तो झूले भी लगा दिए जाए फॉर द चिल्ड्रंस और ऐसे चेयर वगैरह होता सीटिंग के लिए, जैसे ओल्ड एज वालों के लिए। वेलपुर मंडल के मुकाम पर इनेकात अमल में लाए गए चाकली अलामा की बरसी तकरीब में शिरकत करने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पेश की खराज क़दर। आज बहादुर खातून चाकली अलामा की बरसी के पेश नज़र वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ इनके मुजस्समे पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की और कहा कि ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात दिलाने के लिए चाकली अलामा की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस मौके पर खराज क़दर पेश करने वालों में DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, रैतु क़ायद के नरसिम्हा नायडू, रजका संगम के कायदीन, मुकामी अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। शहर के ZP दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए पंचायत राज महकमे के चीफ इंजीनियर दफ्तर का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। ज़िले निज़ामाबाद के ज़िले परिषद दफ्तर में जदीद तौर पर क़ियाम अमल में लाए गए पंचायत राज महकमे के चीफ इंजीनियर दफ्तर का रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इससे कबल निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण और पंचायत राज चीफ इंजीनियर G
सीतारामलू ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बातजा ZP चेयरमैन डी विठल राव, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, ZP CEO के हमरा चीफ इंजीनियर दफ्तर का रिबन कट करते हुए इफ्तिताम में लाया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली स्कीमात को हर एक देहात में मुक़ीम अवाम तक पहुँचाने के लिए रियासती वज़ीर आला KCR ने खुसूसी इक़दामात अमल में लाने का इजहार किया। చాలా కొత్త ఇంజనీర్స్ పోస్టులు వచ్చినాయి, డివిజన్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి, సబ్ డివిజన్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి, చీఫ్ ఇంజనీర్ సర్కిల్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్ ఆఫీస్ ఒకటి కొత్తగా మనకు వచ్చింది. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ नेहरू मुजस्समे के पास चाकली अल्लामा की 38वीं बरसी तकारीब के मौके पर राजगा संगम के कायदीन ने पेश की खराज अक़ीदत। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ नेहरू मुजस्समे के पास बहादुर खातून चाकली अल्लामा की 38वीं बरसी तकारीब के पेश नज़र राजगा संगम से वाबस्ता कायदीन ने खराज अक़ीदत पेश के इस प्रोग्राम में राजगा संगम मंडल के सदर नागेश, मौजे के सरपंच राजा रेड्डी, रूपेश, नवीन, राजेंद्र, मणिकांत, प्रशांत, राकेश, विनय, वंशी, साई कुमार वो दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की इन सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में शानदार पैमाने पर तेलंगाना जंगजू चाकली अल्लामा की बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। स्पीकर पोचराम को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पेश की खराज अक़ीदत। बालकुंडा के मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लेने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले निजामाबाद के ZP दफ्तर पंचायत राज चीफ इंजीनियर दफ्तर का किया इफ्तिताह। इनके हमरा ZP चेयरमैन डी विठल राव मौजूद। बोधन MLA शकील आमिर के ज़ेर-ए-एहतिमाम कैंप दफ्तर पर मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस व मेगा मेले का किया गया इफ्तिताह। जिले कामरेड्डी अकबर नगर में तरक्याती फलाह स्कीमात का IAS अहदेदारों ने लिया जायजा। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम का आगाज़। जगतियाल में 400 मशीनों की तक़सीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।